Yes. So the next time the practical number 3 would be non-verbal communication. Now what exactly you need to do, I will tell you. See, though as per the AICTE norms and MSBT norms, you need to simply write or draw one picture and write its importance in an organization, in your manual. But this is the way they expect us. But what we are going to do is, actually we are going to perform here. You would be performing a non-verbal skit here. Now what is this non-verbal skit? With actions you have to speak, and you have to speak very clearly. So anything that you say without using words in any manner, that is non-verbal communication. Did you understand? Anything you say or pass a message without using word, spoken or written, but you pass the message. For example, what is this? Be silent. Keep silent. Keep quiet. I didn't say anything. Shh. Keep quiet. I didn't say, just a hissing sound. Sound. Either I am expecting you to pay attention to what I say, or just keep quiet. The importance of this particular non-verbal communication is that it passes a message very quick. For example, you are in a traffic, you are driving your bike or two-wheeler. There is a red signal. You saw that red signal. What would you do? Stop. Stop. You will apply the brake. There is no need to read a message. Now your side is closed, so stop. And most of the time these indicators are at higher position. From distance also you can have a look at it, so that long distance people or the passengers should get the message quickly. Stop. Red signal मतलब stop, नहीं तो accident हो जाएगा. And when it becomes green, zip zap zoom, हम लोग चले जाते हैं, right? And when it becomes yellow, what happens? Slow down. Actual message is कि slow down, लेकिन हम लोग slow down नहीं करते. और fast. हमें पता है इसके बाद red होगा, तो हम लोग zip zap zoom और accelerator बना. I also do the same thing, because whenever, and I think everybody behaves like an Ambani over there, कि भाई अगर 10 मिनट में लेट हो गया, क्योंकि एक बार येलो सिग्नल आया कि उसके बाद रेड आएगा, तो 1-2 मिनट या मुझे रुकना पड़ेगा, तो हम लोग वो 2 मिनट रुकते नहीं हैं. हम लोग क्या करते उल्टा? Accelerate and just go, which is sometimes deadly and fatal. And many people, they have lost their limbs, they have lost their lives also. तो तुम लोग वो मत करो. तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, काफी क्विक होता है, राइट? एंड लेट मी टेल यू वन फैक्ट. जितना भी कम्युनिकेशन होता है ह्यूमंस का, आउट ऑफ विच मोर देन 70% नॉन वर्बल होता है. और आप बोलोगे सर कुछ भी, यस और नो? अभी तुम लोग सब बैठे हो, लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ मैसेज पास कर रहे हैं. कोई नॉडिंग कर रहा है, कोई बिल्कुल ऐसे बैठा है. हाँ सर टाइम हो गया सर जाना है हमें सर, राइट? लेकिन बोला सर आपने बहुत ज्यादा बोला है सर आज. तो उसी ख्याल में कि सर ने क्या क्या बोला. बॉडी लैंग्वेज, योर होल बॉडी, ऑल पार्ट्स दे स्पीक, including your dress, your shoes, your hairstyle, your eyes, the accessories that you are wearing, the body odor, everything communicates about it, right? So you have to make sure that when you communicate with the help of your body and all the things that I told you, you must create one professional impression. Otherwise, sometimes people will start gossiping about you. And how they start gossiping about you, in the course of this discussion, you will come to know. Let's see. तो इस नॉन वर्बल में क्या क्या चीजें आती है? पहली क्या है? साउंड से भी कम्युनिकेशन होता है. जैसे हवलदार की सीटी, ट्रैफिक हवलदार की सीटी बजते ही क्या करते हैं हम लोग? रुकते हैं क्या? नहीं. रुकना चाहिए, लेकिन रुकते हैं क्या? नहीं. इंडियन मेंटालिटी इज लाइक दैट. जिप जैप जूम. कोयल की आवाज सुनी? हर पंछी की, हर जानवर की पर्टिकुलर आवाज है, इंक्लूडिंग साउंड क्वालिटी ऑफ योर फादर, मदर, योर क्लोज फ्रेंड्स. हमें पता चलता है कि कौन बोल रहा है. नाम से बताने की जरूरत नहीं, फोन आती है, साउंड क्वालिटी से पता चल जाता है कि उस छोर पे कौन है. सो साउंड कम्युनिकेट्स अ लॉट.
साउंड कम्युनिकेट्स अ लॉट। बाहर गोली चली, एरोप्लेन जा रहा है, साउंड कम्युनिकेट्स। साउंड ऑफ एम्बुलेंस, प्रे करने लगते थे यार अगर अच्छा आदमी है तो बचा लेना भगवान, अगर बुरा आदमी है तो लेके जाना भगवान। बहुत बार मैं ऐसे करता हूँ, राइट? आई लिटरली डू सो। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर अच्छा आदमी तो प्लीज बचा लेना, क्योंकि ये प्लेनेट अच्छे आदमियों के कारण चलता है, राइट? गेट दैट? तो साउंड कम्युनिकेट्स। तो अभी तुम्हें एज एन इंजीनियर सीखने की क्या जरूरत है साउंड से? जब भी तुम लोग ऑफिस में रहोगे अपने चेयर की आवाज मत करना। जब भी इंटरव्यू के लिए जाओगे डोंट ड्रैग इट एंड क्रिएट अ नॉइस। वो बैड इंप्रेशन होगा आपका, अनप्रोफेशनल इंप्रेशन होगा। नया जूता लाया वुडलैंड का, टपाक 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 जा रहा है आवाज तैयार करके, तुम्हें ये करना नहीं है। दोस्तों से बात कर रहे हो या फोन पे बात कर रहे हो, भले ही बीवी से झगड़ा कर रहे हो लेकिन एकदम प्यार से, ओके हाँ ठीक है, नहीं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हें पसंद है तो ठीक है, मैं ना नहीं बोलूं। एक्सप्रेशन भी तुम्हारे एकदम अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने साउंड की लाउडनेस बढ़ा दी बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा। यस और नो? तो आपको बात करते समय भी एक मॉडरेट टोन रखना है, मॉडरेट लाउडनेस रखनी है एज पर द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द लिसनर। तो ये आपको सीखना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीखना है। मतलब क्या? व्हेन यू विल बिकम अ प्रोफेशनल, मेक श्योर दैट अननेसेसरीली नॉइज आप क्रिएट नहीं करोगे। खाना खाते समय भी आवाज नहीं होनी चाहिए, दैट इज बैड मैनर, दैट इज बैड मैनर। कुछ लोग तो क्या करते हैं, अगर उसी ऑफिस में समझो वॉश बेसिन भी है तो वो कुल्ला करते जोर से। कुछ लोग तो गला साफ करते हैं। That's I mean yuck feeling. Obviously the people around you they will feel disturbed. So you make sure that you don't create any kind of noise. बहुत बार हमें पास भी आती है, आवाज नहीं करना है, टॉयलेट में जाना है। पॉइंट ये है कि बहुत सारे एसी रूम्स होते हैं और एसी ऑफिसेज होते हैं और ऐसे ऑफिस होते हैं, काफी छोटे छोटे क्यूबिकल्स होते हैं, क्योंकि मुंबई जैसे शहरों में तो जगह है ही नहीं, और उसमें अगर आपने कुछ आवाज करी या कुछ बदबू छोड़ दी, ऑब्वियसली एवरीबॉडी विल बी डिस्टर्ब्ड। Non-verbal communication, in that context we are discussing this. So please mark my words कि आपका साउंड जो भी होगा वो अनबेरेबल नहीं होगा, अननेसेसरी अनरिक्वायर्ड नहीं होगा, जितना जरूरत है उतना ही। बॉस आपके सामने बैठा है तो आप एकदम यस सर नाउ द प्रेजेंटेशन इज रेडी सर। आपके साउंड की क्वालिटी मॉडरेट ही होनी चाहिए, वो पैरा लैंग्वेज में भी आएगा, दैट आई विल डिस्कस। साउंड समझ में आया? यस। आगे स्मेल, आई थिंक स्मेल का भी आपको थोड़ा सा तो ये देखो, खाना खाना है, you open your tiffin and the aroma of your food will disturb everyone. Oh, biryani. And if it is chicken biryani, vegetarian जो होंगे वो मैं नॉनवेज नहीं खाता, मन में तो लालसा हो सकती है, लेकिन the aroma disturbs. इंद्रायणी चावल पता है आपको? Yes. You just open it, even if it is raw, you get the aroma, and I'm really crazy about it. तो हमारी भूख बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द एरोमा। स्मेल आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस और इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? मुंबई जैसे जो शहर है उसमें वो हम लोगों को ज्यादा पसीना आता है, तो बॉडी में से बदबू आ सकती है। 8 घंटे काम कर रहे हैं हम लोग, 2 घंटा हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो स्वेटिंग तो होता है, तो स्वेटिंग होने के बाद टॉक्सिन्स बाहर आते हैं हमारी बॉडी से, मेनली द आर्मपिट एंड ऑल और प्राइवेट पार्ट्स एंड ऑल, तो हमारी बॉडी की बदबू नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने कम से कम 2 बार नहाना है, नंबर 1। दूसरी बात, आपके पास परफ्यूम एंड डिओ होना चाहिए, बट एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं। आपके स्मेल के कारण किसी का अस्थमा ट्रिगर नहीं होना चाहिए। बहुत सा बार होता है, या फिर आपके परफ्यूम ही आपकी पहचान नहीं बननी चाहिए ऑफिस में। लगता है वो आ गया, लगता है वो यहाँ था, मतलब बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर परफ्यूम और द डिओ दैट यू यूज। सो मेक श्योर कि आपका डिओ और परफ्यूम एज पर योर बॉडी क्वालिटी होना चाहिए। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ऑल, वो आपकी बॉडी की ओडर के अनुसार आपको साइट्रस देना है या कुछ चंदन देना है, वो डिसाइड करते हैं, दे हैव द नॉलेज।
तो कभी कभी अगर तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो तो वो कर सकते हो आप, ताकि पूरी लाइफ टाइम वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि हमारा खाना ही ऐसा है कि हमारे बॉडी से बदबू आती है, हम लोग खाना ही ऐसा खाते हैं, द टॉक्सिन्स आर क्रिएटेड। तो स्मेल के बारे में पता चला, स्मेल इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि अगरबत्ती एक घर में लगाइए, 4 घरों में पता चलता है चलो यार पूजा का समय हो गया। स्मेल, राइट? 2 किलोमीटर पे तबेला है, यहाँ पे पता चल जाते हैं, राइट? हापुस, अल्फांसो, Yes. प्योर हापुस की तुम लोगों को पूरे घर में खुशबू सुनाई देगी, समझेगी किसने लाया। कौन कोंकण से है यहाँ पे? एनीबॉडी फ्रॉम कोंकण रीजन? हाँ, जब जाएगा तो असली हापुस लेकर आना मेरे लिए, ऑफ कोर्स आई विल पे फॉर इट। अभी कोंकण वालों को ही क्यों बोलना है बताया, क्योंकि मुंबई में बहुत बार लोग फंसा देते हैं, दिखता हापुस जैसा ही है, और मेरे जैसे जो लोग कोंकण रीजन गए नहीं है कभी, उन्होंने एक्चुअल में देखा नहीं है, एक्चुअल खुशबू ही पता नहीं, हमारी मेमोरी में स्टोर ही नहीं है ऐसी खुशबू या बदबू जो हमारी मेमोरी में स्टोर नहीं है, हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बस इतना ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि खुशबू लग रही है या बदबू लग रही है, राइट? और कुछ लोगों के लिए खुशबू हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वो बदबू हो सकती है, डिपेंड्स, फाइन। तो और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक लिमिटेशन है, दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो आपको स्मेल का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, मेक श्योर कि आपका बॉडी ओडर ना आए, सो टेक बाथ प्रॉपर्ली, मेक श्योर कि योर ब्रेथ इज आल्सो वेरी फ्रेश। उसके लिए आप आफ्टर एवरी मील यू मस्ट क्लीन योर टंग एंड ऑल, you must make sure that you do not have any cavities developed, you must make sure that your food is digested, क्योंकि वहां से भी वो बदबू आ सकती है। सी मुंह से बदबू आ रही है या बॉडी से बदबू आ रही है ना, लोग बताते नहीं है, क्योंकि दिस इज आई मीन एवरीबॉडी फील्स कि मैं कैसे बताऊं यार। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेंटेन दैट हाइजीन। तो स्मेल मैटर्स अ लॉट, स्मेल मैटर्स अ। अगला पॉइंट, कलर्स बताने की जरूरत है। हर कलर हम लोगों ने तो बांट भी दिए है, भगवा कलर हिंदू, हरा कलर मुसलमान, और फिर वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का वो कलर वो बौद्ध लोगों का, हम लोगों ने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इट्स नॉट लाइक दैट। हरा कलर है तो प्रॉस्पेरिटी, रेड कलर है तो समथिंग हार्श, खूनी, राइट? हमारा तिरंगा है, देखो आप उसमें डिफरेंट कलर्स है। सफेद कलर है प्योर शांति, राइट? सो कलर्स भी काफी सिंबॉलिक होते हैं, उनको बहुत सारा मीनिंग हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। लेकिन तुम्हें एज अ प्रोफेशनल कलर्स के बारे में क्या केयर करना है? जो भी शर्ट पहनोगे, अगर पर्टिकुलर उस ऑफिस का पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं है, तो जो भी शर्ट पहनोगे, ट्राउजर पहनोगे, मेक श्योर कि वो एज पर योर कॉम्प्लेक्शन का कलर हो, कि आपकी पर्सनालिटी उसमें अच्छी लगे, ना कि शाहरुख खान इस कलर की शर्ट पहनता है इसलिए मैं भी लेकर आऊंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। तो आपको वो कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना है कि शर्ट की कलर ये है तो उसी प्रकार के जूते हैं, टाई उसकी प्रकार की मैचिंग है बराबर, दैट एनहांसेस माय पर्सनालिटी, माय आउटलुक, वो आपको ध्यान देना है। कलर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। So your tie, your blazer, your shirt, your trouser, the color of your shoes and socks, everything you must make sure and take care of. अगर आप बोलोगे सर इससे क्या हमारा परफॉर्मेंस में फर्क पड़ने वाला है क्या? हम लोग अपने आप के बारे में अच्छा सोचते हैं, and when you feel good about yourself, your performance enhances. I know that. जैसे आज मैंने बहुत सारे लोगों को भगाया, चलो शर्ट टक इन करके आओ, या फिर अगर तुम्हारी शर्ट क्लीन नहीं है, डिस्करेज होगा, आई नो दैट। यू डोंट फील गुड अबाउट योरसेल्फ। जैसे हम लोग बाथरूम में जाते या देखते आईने में, अरे शर्ट गंदी लग रही है, वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। या फिर कभी कभी हम लोग बाहर नाश्ता वगैरह करते हैं तो दाग लग जाते हैं, एंड देन हमारा ध्यान इधर जाता है, फिर या फिर ऐसे हाथ रख के आते हैं, क्योंकि वी आर डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दैट। सो मेक श्योर कि कलर कॉम्बिनेशन आपका बराबर। दैट इज हाउ, एंड दिस इज हाउ यू मस्ट लर्न नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Right? It is not in general context that you are going to learn. Everything that we are going to do in the subject business communication using computers, make sure that you are a professional and how you are going to apply this knowledge when you become a professional. I hope you understand what I mean by that. Yes. Is that clear? अगला point. Dress code. बता दिया मैंने अभी, डायरेक्टली और डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अभी ड्रेस कोड का थोड़ा सा ऐड करता हूँ।
कंपनी का ड्रेस है, वेल आयरन एंड क्लीन्ड एवरी डे। 2 खरीदो 3 खरीदो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जाएगा, वो खराब होते हैं। मुंबई में अगर रहोगे तो एक दिन में ड्रेस खराब हो जाता है, इट स्टार्ट स्टिंकिंग बिकॉज ऑफ द स्वेटिंग एंड ऑल। क्योंकि लोकल में चले जाओगे ना, कितने लोगों की तुम लोग हाथ साफ कर रहे हो उससे और कितने लोग हाथ मार रहे हैं, यू नेवर नो। और यहाँ पे फिश बेचने वाले भी है, चिकन बेचने वाले भी उसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास और मे बी मेट्रो, भीड़ बहुत ज्यादा है। सो योर शर्ट इज बाउंड टू स्टिंक, सो मेक श्योर दैट योर ड्रेस कोड इज क्लीन, not stinking and ironed, and you are presentable. And as per the occasion you have to wear the dresses. कुछ कभी-कभी पार्टीज होती है तो ऑब्वियसली आप अच्छे ढंग के कपड़े पहन के जाओ, किसी फंक्शन में जा रहे हो तो ढंग के कपड़े पहन के जाओ। You should create and you should stand in the crowd. उस प्रकार की आपकी ड्रेस कोड होनी जरूरी है। वेल स्टेज्ड, जाके कोई भी अच्छा दिखा रेडीमेड स्टफ उठा के लेकर आए, और आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग चलती है, वो मॉडल सुंदर मॉडल ऑलरेडी सुंदर होती है, उसको कुछ भी पहना हो वो अच्छा लगता है। बहुत बार मेरी बीवी भी दिखाती है, ये देखो ये ड्रेस अच्छा लग रहा है ना, मैं बोलता ड्रेस वाली तो अच्छी है, ड्रेस का पता नहीं। कभी कभी वो बोलती है ये ड्रेस फ्री है, मैंने बोला मॉडल को भी फ्री नहीं आती क्या, मैं पैसे दे दूंगा। और फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। Right? Actually, I am least interested in that stuff, but she keeps on talking, और आपको सुनना पड़ता है। Ask your mom, ask your dad, right? Okay. Point ये है, ड्रेस कोड की आपको ध्यान रखना है। उसमें आपको हेयर स्टाइल भी ध्यान रखना है, आपके फुटवेयर भी ध्यान में रखनी है। कुछ भी स्टफ उठा के लेकर, बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग कपड़ों पे पैसे खर्च कर देते, जूतों पे नहीं। टॉप टू बॉटम अपना ख्याल रखना है। जूते आप कंफर्टेबल पहनो, बिल्कुल फैशनेबल है, ट्रेंडी है, एकदम हटके लुक है, इसलिए लेकर आओ। और कभी कभी हम लोगों को वो काटता है जूता, और दूसरे दिन जूता पहन नहीं पाते। फिर पॉइंट ये है कि जब आप ट्राई करोगे तो मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये ध्यान में रखना है कि 8 या 10 घंटे वो जूता आपके पैरों में रहेगा, उतना देर तक वो आपको कंफर्ट देना चाहिए, ना कि आपको प्रॉब्लम बढ़ानी चाहिए उसमें। अगर आपके पैर अच्छे रहेंगे तो आप कम थकोगे और अच्छा परफॉर्मेंस दोगे या काम करोगे। इज दैट क्लियर? सो ड्रेस कोड में सब कुछ आना। हेयर स्टाइल, बॉयज इधर बाल बढ़ा दिए, इधर कुछ कर दिया, वो किसी को फॉलो कर रहा है, डोंट डू दैट। ऐसी हेयर स्टाइल रखो कि दैट एनहांसेस योर आउटलुक, नंबर 1। नंबर 2, उसको ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हाँ चलो अभी बाल खराब हो गए तो कंघी मार देता है। क्यों? टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अगर आपका खुद का बिजनेस है, आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। और वहां पे हम लोग सजने संवरने के लिए जाते हैं क्या ऑफिस में, बॉस ने अगर देखा कि आप 10 बार कंघी कर रहे हो, बोलेगा भाई काम कब करेगा। ये होता है, आपको अब तक बॉस पता नहीं है, इसलिए आपको अहमियत नहीं है बाप की। एक बार बॉस पता चल गया ना, तब आप बाप के पैर छूओगे कि यार यू आर द बेस्ट पर्सन अवेलेबल। कितना टॉलरेट किया इतने सालों तक, बॉस नहीं टॉलरेट करेगा क्योंकि वो पे कर रहा है आपको। सो मेक श्योर कि आपका ड्रेस कोड, हेयर स्टाइल, फुटवेयर, बेल्ट, एवरीथिंग प्रॉपर, दैट एनहांसेस योर आउटलुक एंड यू शुड फील गुड अबाउट योरसेल्फ। आईने के सामने खड़े रहते, यस अच्छा लग रहा हूँ, अच्छी लग रही है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है। दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल। अगला, साइलेंस। मेंटेन साइलेंस। साइलेंस स्पीक्स अ लॉट। कैसे? एक एग्जांपल बताता हूँ। ये शील्ड फाटा जो है ना, अपना शील्ड फाटा, बहुत भीड़ रहती है वहाँ पे। इट्स इंटरसेक्शन और वहाँ पे काम भी चल रहा है फ्लाईओवर का। Yes. तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है एंड पीपल आर वेरी एरोगेंट। सबको लगता है कि दिस रोड बिलोंग्स टू माय डैड। वो देखेंगे भी नहीं कि इधर से गाड़ी आ रही है उधर से गाड़ी। मैं जैसे ही टर्न ले रहा था, पॉज, साइलेंस। इसका मतलब क्या हुआ? सस्पेंस लेस। हाँ सर, सस्पेंस, Curiosity. सर आगे क्या, राइट? आगे क्या? तो साइलेंस कम्युनिकेशन। लेकिन एज अ प्रोफेशनल इस साइलेंस का आपको इस्तेमाल कैसे करना है कम्युनिकेशन करने के लिए? हर्ष, मेंटेन साइलेंस काम करते समय।
बहुत बार हम लोग लेट आते हैं इसके लिए, मीटिंग के लिए, कभी कभी हो जाता है। फिर हमारे बैक की आवाज, हमारे पैरों की आवाज, हमारे ड्रैगिंग की आवाज, डोंट डू दैट। इससे क्या होगा? तो आपको बिल्ली की तरह आना है क्योंकि यू आर लेट, राइट? शांति से बैठना है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, सिर्फ इशारों से बोलते हैं कि आई एम लेट, आई एम रियली सॉरी, मे आई कम इन। और जो बॉस कंडक्ट कर रहा है मीटिंग, वो कभी कभी आपको बुला लेता है, तो बिल्कुल शांति से, किसी को पता ना चले कि आप बैठे हो। मेंटेन दैट साइलेंस। जब मीटिंग चल रही है, पैर हिलाना नहीं, फिजिटिंग करना नहीं, किसी चीज की आवाज करना नहीं, कुछ करना नहीं, मेंटेन साइलेंस। जब प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो प्रॉपर पॉजेज लो, लोगों को समझने दो आप क्या कर रहे हो। पॉजेज मतलब साइलेंस, राइट? आपने राज ठाकरे जी का ये वक्तृत्व देखा होगा, सुना होगा। No politician has that particular quality which Mr. Raj Thakre has. He uses the pauses to raise the curiosity of the public. And once the curiosity is raised because of the silence of the pause, he releases his dialogue. And people start clapping. And no other politician, I mean, India में भी मैंने ऐसा politician नहीं देखा कि जो pauses के सही इस्तेमाल कर रहा है। See, I don't glorify any political party, ना? मैं हमेशा मोस्टली हमारे टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता हूँ जो भी चीजें देखती हूँ, राइट? सो पॉज, साइलेंस आपको मेंटेन करना है। चलते समय भी ड्रैगिंग की साउंड आनी नहीं चाहिए। हाई हील्स पहन के चल रहे हो तो भी आवाज आनी नहीं चाहिए। मेंटेन साइलेंस, क्योंकि साइलेंस में ही काम होता है। आगे बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब नेक मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, टॉर्सो मूवमेंट, सबसे हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे मीटिंग है, मीटिंग में बॉस ऐसा बैठा है, वो भी चलेगा नहीं। अब तुम लोग ऐसे बैठे हो चलेगा क्या? या बात कर रहे हैं बॉस के सामने, यस सर आई वांटेड टू सी दैट सर, चलेगा क्या? सो यू मस्ट मेक श्योर कि योर नेक मूवमेंट, योर बॉडी मूवमेंट, योर हैंड मूवमेंट्स, योर जेस्चर्स, एवरीथिंग इज प्रोफेशनल। बात समझ में आई? Yes. And you must use your whole body to complement what you say. That is the major function of non-verbal communication. देखो, major function. और ये किसी किताब में नहीं लिखा है। देखो, किसी किताब में नहीं लिखा है कि भाई आपने ये अगर बोलना है तो इस प्रकार हैंड मूवमेंट होनी चाहिए। ऐसा किसी किताब में नहीं है। We just observe it in society and we follow the rules. Right? इसलिए अभी बैठे हो तुम लोग, तो बहुत सारे लोगों की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि वो पक गए, जैसे कि हर्ष वो यान कर रहा है। तो हमें बॉडी से हमारा मैसेज जाता है सामने वाले। कोई बीच में स्माइल कर रहा है, दोनों में कनेक्शन हो रहा है कि यार सर अभी पूरा 3 घंटा करेंगे क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो छोड़ेंगे नहीं हमें और हमारा टाइम भी हो गया। पॉइंट ये है कि तुम्हारे बॉडी से ये सब मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। और जब आपका बॉस आपके सामने बैठा है, कुछ बात कर रहा है, अभी तो ठीक है कि टीचर है, गलती से भी अपने बॉडी से कोई भी नेगेटिव सिग्नल मत देना, कोई भी नहीं। बॉस को अभी तक आपने देखा नहीं है। He has or she has the authority to fire you then and there itself. और आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं अभी कोर्ट चला जाऊंगा, ऐसे कैसे? इट्स प्राइवेट सेक्टर, हाँ, और पैसा भी प्राइवेट सेक्टर में ही सबसे ज्यादा है, एलिमेंटली। और प्राइवेट सेक्टर ही ऐसा है कि जितना अच्छा काम करोगे, जितना ज्यादा काम करोगे, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। सरकारी में शायद ये नहीं है, मैंने बोला गधे। नेक्स्ट पॉइंट, सब पॉइंट वन फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस, anger, sleepy mood, surprise, so many emotions that you can simply show with the help of your face. Smile, right? As an engineer, in any office or any organization, make sure that your facial expressions are professional. When your boss is talking, your facial expression should be like this. Alright. If you simply give him or her like this, a blank look. हेलो मिस्टर हर्ष, रात को नींद नहीं हुई क्या? बीवी से झगड़ा करके आए, इधर सोने आते हो? ये वो बोलेगा। अगर बॉस एरोगेंट है तो पूरी मीटिंग में बोलेगा। अगर थोड़ा सा मेरे जैसा समझदार है तो बोलेगा हर्ष मीट मी आफ्टर द मीटिंग। एंड देन क्योंकि अंदर दोनों हैं, किसी को पता नहीं बाहर, और वहां पे भी अपने एक्सप्रेशन ऐसे ही रखना है कि नहीं तो वो बंदा स्कोल्ड कर रहा है और आपके चेहरे पे उसका असर दिख रहा है तो पूरे ऑफिस को पता चल जाएगा कि आपको पड़ी है आज।
isn't it? Yes. So facial expressions आपके प्रोफेशनल एंड फ्रेश। 1-2 घंटा काम करने के बाद जाओ बाहर, मुंह धोकर आओ, मस्त अपने आप को संवार के आओ। यू शुड फील फ्रेश कि मैं आईने में खुद को देख रहा हूँ, नाउ आई एम कंफर्टेबल, लेट मी स्टार्ट। क्योंकि आप एक वाइब छोड़ते रहते हो हमेशा, यू नो वाइब। Yes. आप अगर ऐसे स्लीपी है, सड़ी हुई सूरत लेके आए, हाँ और रात को बीवी ने बहुत मारा, तो जो लोग फ्रेश है, जिंदा है, काम करने के मूड में आए हैं, वो भी मर जाएंगे, राइट? तो इसलिए अपने फेशियल एक्सप्रेशंस प्रोफेशनल, एकदम फ्रेश, कीप अ स्पॉन्टेनियस स्माइल ऑन द फेस। अच्छा लगता है, यू लुक सुंदर, यू लुक सुंदर। नहीं तो बहुत सारे लोग, उनका चेहरा देख के हम लोग आज का दिन खराब, किसका मुंह देखा मैंने आज? खुद को आईने में देखा होगा, हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को काफी फेशियल एक्सप्रेशंस आपके हमेशा एज पर द ओकेजन रखना है, राइट? कोई बेचारा अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा है और आप कोई आपको जेन्युइनली कुछ बोल रहा है और आप उसको ऐसे मिस्टीरियस स्माइल दे रहे हो, दैट्स नॉट गुड। सो फेशियल एक्सप्रेशंस आपके ओकेजन के अनुसार रखने, फाइन। और एक बात, ऑफिस में कोई लड़का अच्छा लगने लगा या लड़की अच्छी लगी, वो दिखते ही आपके चेहरे की रौनक कुछ अलग बढ़ जाएगी। कंट्रोल, दैट इज नॉट द प्लेस टू शो। समझ में आई बात आपको? रीजन क्या है? आप वहां पे काम करने आए, आप आपका 100% दो, आपके पर्सनल लाइफ से आपके बॉस को कुछ लेना देना नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर परफॉर्मिंग वेल, राइट? फिर आपके कितने भी अफेयर हो, 2, 10, 4, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बंदा या बंदी काम कर रही है, आउटपुट दे रहा है, जाने दो। एक बार ऑफिस से निकल गए, टाटा बाय बाय, क्योंकि दैट्स व्हाट द प्रोफेशनल रिलेशनशिप इज। उसको कुछ लेना देना नहीं आपसे, राइट? और प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं चलता, किसकी जाति क्या है, किसी का धर्म क्या है, कुछ नहीं। वहां पे एक ही धर्म चलता है, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा सैलरी। नो परफॉर्मेंस, घर कोई टॉलरेट नहीं करेगा। तुम्हारे घर में जो मेड आती है, उसने अगर अच्छे से बर्तन साफ नहीं किया, आप बोले कि भाई थैंक यू वेरी मच, ये 2 दिन की सैलरी मैं खुद कर लूंगा, मैं प्लास्टिक की पेपर्स यूज कर लूंगा, मैं कोई पेपर बैग्स यूज कर लूंगा, लेकिन आई विल डू दैट। पॉइंट ये है, हर चीज प्रोफेशनल होनी जरूरी है। और आज मेड लोग भी काफी प्रोफेशनल बन गए। एक काम, इतना टाइम, ये टाइम पे आएगा, ये टाइम पे जाएगा, इस प्रकार चाहिए, ये डिटर्जेंट चाहिए, ये हैंड ग्लोव्स चाहिए, ये रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि वो भी काम ही है ना। एंड इट्स इंडस्ट्री, ना ह्यूज इंडस्ट्री इन मुंबई, करोड़ों में वो इंडस्ट्री चल रही है, राइट? और उसके कारण बहुत सारे लोगों को काम और जॉब मिला है। सो दैट्स गुड, गेट दैट इज नॉट अ टॉपिक फॉर डिस्कशन। So point 2, gestures. जेस्चर्स मतलब आपकी नेक मूवमेंट एंड आपकी हैंड मूवमेंट मोस्टली। तो बात करते समय ऑफिस में जेस्चर्स का सही इस्तेमाल करो। बहुत बार प्रेजेंटेशन होता है, हमें पता नहीं होता कि हाथों को रखूं क्या, जेब में रख लो। जेब में रखोगे तो वो एरोगेंस हो गया, ऐसे पीछे रखोगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है, राइट? तो मोस्टली आपके हाथ ऐसे होने चाहिए, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। एंड जब जो भी रिक्वायरमेंट है, यूज देम। Yes, Mr. Kaivalya, what do you want to say? All right, sit down. Yes, this is how, as per the requirement. जब काम नहीं है उनको ऐसे रखो। बहुत बार हमें ये पता नहीं होता कि क्या करो, फिर हम लोग ऐसे करते हैं। बॉस के सामने ऐसे करोगे क्या? नहीं, not good. तो और डर भी नहीं दिखना चाहिए, because you are professional and you are working for the person. You have got the knowledge and you are simply imparting. So डर भी नहीं लगना चाहिए आपका। पॉइंट ये है कि you should know how to use your neck, how to use your hands to convey something, mostly to complement what you say. Yes, when you are in the meeting and some presentation is going on, अपनी जो नेक है, इससे पता चलता है कि you are listening at least. कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ध्यानस्थ बैठते हैं, मेडिटेशन, मीटिंग खत्म हो गया, बाजू वाला बोलता है खत्म हो गया, they keep on taking a good nap with wide open eyes, like you guys. Yes or no? No. It's yes. और तुम लोगों ने अपने आप को ऐसे ढाल के रखा है, you have adopted that method of how to take good nap with wide open eyes. टीचर भी खुश, बॉस भी खुश, वाह मीत क्या सुन रहा था, क्या सुन रहा था, कुछ नहीं, कुछ नहीं। So
आपको फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स का सही इस्तेमाल करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है व्हाट यू से, एंड व्हेन यू कॉम्प्लीमेंट व्हाट यू से विद द जेस्चर्स एंड द पोस्चर्स एंड आई कांटेक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, इसका सही इंप्रेशन या सही मैसेज पास होता है। जैसे देयर इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट, तो ये वाइड होना चाहिए, वी हैव गॉट अ ह्यूज ऑर्डर। लोग आप क्या बोल रहे हो उसकी तरफ नहीं ध्यान देंगे, आप क्या दिखा रहे हो, क्या शो कर रहे हो उसकी तरफ ध्यान देंगे। इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ आपने कॉशियसली ध्यान देना है, समझे? अभी कल साई और वो ये लोग इंटरव्यू ले रहे थे, तो साई और वो पंकज पाटिल दोनों भी पेन टिक 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 कर रहे थे। उनको पता ही नहीं चल रहा कि देयर एक्शन इज बीइंग रिकॉर्डेड, और मैं भी भूल गया बाद में उनको बताने के लिए। दिस हैपेंस आउट ऑफ नर्वसनेस, बट उस पे हम लोग काम कर सकते हैं इफ यू आर थरोली प्रिपेयर्ड। फाइन, ओके, अगला पॉइंट। So point number 3, posture. Posture means the way you stand. ये काफी important है। The way you stand, correct? बहुत बार सब लोग देख रहे हैं और पोडियम वगैरह कुछ नहीं, हमारी बॉडी को ढकने के लिए, तो हमें डर लगता है, राइट? कभी कभी इधर दाग लग गया है या फिर हम लोगों की जीभ फटी हुई है, फैशन है, लेकिन बॉस है तो हम लोग फिर ऐसा करते हैं। हमें इरेक्ट खड़े होना है, दोनों पैरों पे खड़े होना है। पोस्चर का मतलब सिर्फ यही नहीं, द वे यू सिट। बहुत सारे लोग एकदम ऐसे बैठते हैं, राजा महाराजा। हाँ बोल भाई, क्या चल रहा है? एंड दैट्स नॉट गुड। एक्चुअल प्रोफेशनल पोस्चर इज दिस, right? Or this. Keep your hands on your lap like this. If you are a candidate in interview, make sure that you maintain like this. कुछ लोग ऐसे बैठे, so that's not correct method. And we don't realize it. Out of nervousness, out of fear, we just go on sitting randomly and like anything, and that creates the bad impression. Even if we are not arrogant, because of the body movement, the arrogance is created, right? And healthy position होती है यही, correct? कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, so that's not good. Again, that's not good. If you are just doing like this continuously, you are straining your spine, and it affects. And once your body is affected, obviously you wouldn't be able to perform. So and it will result in underperformance. Underperformance is equal to नब्जा, परफॉर्म और पेरिश, ये दो ही चीजें होती है। समझ में आई बात? अगला पॉइंट आई कॉन्टैक्ट। हाँ, और क्वेश्चन में और एक है, द वे यू वॉक, दैट आल्सो मैटर। द वे यू स्टैंड, द वे यू वॉक एंड द वे यू सिट। सो ऑफिस में बैठते समय इधर सुंदर लड़की है इसलिए ऐसे बैठे, जरूरत है क्या? आई एम गिविंग यू एन एक्सट्रीम एग्जांपल। बहुत बार हमें पता नहीं चलता, लेकिन अपना काम, अपना डेस्क हम लोग बैठे, हमें जरूरत नहीं है। हाँ, वहां से बाहर निकलने के बाद कैफेटेरिया में जाओ, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बिकॉज़ दैट्स द इनफॉर्मल सिचुएशन, फाइन। सो बैठेंगे कैसे, बात कैसे करेंगे, वॉक कैसे करेंगे, द वे यू कैरी योरसेल्फ, दैट इज व्हाट पोस्चर इज, एंड इट शुड नॉट गिव एनी नेगेटिव मीनिंग। आई कॉन्टैक्ट। बात करते समय आंखों में आंखें डाल के बात करो, सामने वाला आप पे विश्वास करेगा। बात करते समय सबकी तरफ देख के बात करो, ताकि सभी लोगों को लगेगा कि यस, ये चीज मेरे लिए भी चल रही है। और आंखों से बहुत बातें होती है, आंखों में इशारा हो गया, होता है ना? कुछ लोग आंख मार देते बीच में आंख मार देते मतलब ऐसे तोड़ के डाल देगा, ये मार दी नितिन को आप, ऐसे नहीं है, यू सिंपली विंक। और ये विंकिंग का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट में दूसरा होता है। तुम अपने कलीग को आंख मारो, वो समझ जाएगा कि आज पार्टी करनी है। किसी लड़के को आंख मारो, वो कंफ्यूज हो जाएगा। किसी लड़की को आंख मारो, वो तुम्हें दे देगी। दो लाख है, तो वहां पे कम्युनिकेशन बाय टच, कम्युनिकेशन बाय आवाज एंड कम्युनिकेशन बाय आईज सब हो गया। पॉइंट ये है कि यू मस्ट पे अटेंशन टू द स्पीकर और द लिसनर। When you are a speaker, pay attention to the listener, and when you are listener, pay attention to the speaker. जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ,
राइट? और कोई इधर उधर देख रहा है, तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा टीचर क्या बोलता है, अरे भाई मैं इधर बाहर क्या देख रहा है, कुछ भी बाहर, राइट? पॉइंट ये है आँख, और आंखों से ही पता चल जाता है कि कौन सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है, राइट? एज अ स्पीकर लोग अगर तुम्हारी तरफ देख के सुन रहे हैं, नॉडिंग कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए वो इंडिकेशन होता है कि यस आई एम डूइंग गुड। और लोग बिल्कुल ऐसे, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, इट्स एन इंडिकेशन कि भाई बंद करो। लेकिन टीचर्स बंद नहीं करते, 1 घंटा खत्म होने के बाद ही बंद करते हैं। और कभी कभी कुछ पॉइंट्स अगर बाकी है तो वो स्ट्रेच कर जाते हैं, रिसेस भी खा जाते हैं। अगला पॉइंट, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज, ये सबसे सुंदर होती है। पैरा लैंग्वेज नाम की लड़की नहीं है कोई? पैरा लैंग्वेज यानी क्या? शब्द वही रहेंगे, बट द वे यू प्रोनाउंस देम मीनिंग चेंजेस। देखो, मीत एक अच्छा लड़का है, मीत एक अच्छा लड़का है, वर्ड्स आर सेम, सेंटेंस स्ट्रक्चर इज सेम, I simply change the stress and intonation pattern and the meaning is उल्टा। क्या बात कर रहे हो? मुझे पता है, वो सिर्फ टाइम पास करता रहता है बात। अभी और देखो, मीत ने आज अच्छा इंटरव्यू दिया, क्लियर? काफी, आई मीन सिंसियरली आई एम टॉकिंग। मीत ने अच्छा इंटरव्यू दिया, मीनिंग चेंज। मीत ने अच्छा इंटरव्यू दिया, मीत ने अच्छा इंटरव्यू दिया, मीत ने अच्छा इंटरव्यू दिया। स्ट्रेस चेंज्ड, मीनिंग चेंज्ड। द वे आई एम हाईलाइटिंग द थिंग्स बेस्ड ऑन द स्ट्रेस पैटर्न, द मीनिंग चेंजेस। दैट्स व्हाट पैरा लैंग्वेज इज। दैट्स व्हाट पैरा। इसलिए बात करते समय व्हाट यू आर सेइंग, नो, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द वे यू स्पीक इट। कनिष्क इज वेरी सिंसियर, वो आना चाहिए, वो आना चाहिए। कीप क्वाइट, वो डर उसमें आना चाहिए, राइट? अगर उल्टा हो गया, सॉरी रे, सॉरी, व्हाट इज दिस? वर्ड्स सॉरी, और टोन देख लूंगा तुझे, बाहर निकल। आई होप यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ मुकेश पाटिल दैट आई जस्ट नरेटेड इन द प्रीवियस सेमेस्टर। पैरा लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। क्या बोले, कैसे बोले, तो कैसे बोले ज्यादा बेटर, राइट? छुट्टी चाहिए, बॉस के सामने जाके कैसे बोलोगे? सर 1 दिन की छुट्टी चाहिए, ब्लैंक, एक्सक्यूज मी सर। Expressions. टोन देखा, आई नीड अ कैजुअल लीव ऑफ 1 डे। सामने वाले को पता चलेगा कि जेन्युइन जरूरत है। एक्ट, फेक इट टिल यू मेक इट। Yes. तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि द वे यू स्पीक उस पे मैटर करता है, बाकी चीजें। किसी लड़कों को प्रपोज करना है, आई लव यू, और वो कुछ लोग तो ऐसे घुटनों पे बैठ जाते हैं, और कुछ भी ऐसी एक रिंग लेके जाते हैं, और दैट इज आल्सो एन आउटडेटेड वन। अभी कल परसों मैंने एक मूवी में देखा, लड़की लड़के को प्रपोज कैसे करती है। जस्ट सुनो, डोंट अप्लाई ना। एक मूवी में है वो ऑब्वियसली, और मूवी में जो मार पड़ती है वो भी ऐसी ही होती है, रियल होती है, रियल में रियल मार पड़ती है, इसलिए डोंट ट्राई इट, वार्निंग। लड़की लड़के पे फिदा है, लड़की क्या करती है, अपना फोन कहीं तो भी रख देती है, और लड़के को बोलती कि मेरा फोन नहीं दिख रहा है, जरा कॉल करो। तो लड़का कॉल करता है, रिंग बजती है, तो लड़का उस तरफ जाता है, और ऊपर नाम आता है माय हार्ट। समझ रही बात समझ में? दिस इज समथिंग इनोवेटिव एंड आई वाज इम्प्रेस्ड कि यार मैंने पहले कभी नहीं पता है। अगर शादी के पहले पता होता तो शायद आई वुड हैव यूज्ड इट। पॉइंट ये है, हाउ दैट मैटर्स। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इम्प्लीमेंट करना है, या जब भी करोगे ना मेरी याद जरूर आएगी। कॉल करोगे, सर एक अच्छा लड़का लग रहा है, उसको कैसे प्रपोज करूं जरा बताइए, तो वीडियो रिकॉर्ड करके डू ट्राई दिस, राइट? ओके, अगला पॉइंट, टच हैप्टिक्स। हाँ, टच से भी कम्युनिकेशन होता है। अभी 2-2, 3-3 टॉपिक में तुम लोग फेल हो गए, सब्जेक्ट में फेल हो गए। समझो रो रहे हो,
डैडी ने आके सिर्फ यहाँ पे ऐसे टच किया, कुछ नहीं बोले और चले गए, क्या लगेगा? दैट्स फाइन, तू 3 फेल हुआ है, मैं 4 हुआ था, डोंट वरी। या मेरे जैसा अगर बाप रहेगा, कितने सब्जेक्ट फेल हो गया? 3। आवाज के साथ टच भी आएगा। कम्युनिकेशन क्या हुआ? निकम्मा कहीं का, धरती का बोझ, राइट? और अगर 4, 5, 6 सब्जेक्ट फेल हो गया है तो ऐसे आवाज नहीं आएगी, ऐसे आएगी, राइट? इसकी आवाज नहीं आती, लेकिन लगता बहुत ज्यादा है। टच, समझ में आया आपको? अभी ऑफिस में क्या करना है, टच का इस्तेमाल कैसे करना है? किसी के साथ शेक हैंड करनी है 2 या 3 बार, अभी ये कल्चरल बाउंड है, राइट? ये कल्चरल बाउंड है। हम लोग 1, 2, 3 बस। और अपोजिट जेंडर है, लड़का लड़की के साथ शेक हैंड कर रहा है, तो यू मस्ट टेक केयर दैट यू डोंट गो ओवरबोर्ड। ऐसे होगा भाई, छोड़ना है, राइट? पॉइंट ये है प्रोफेशनल टच, दिस इज प्रोफेशनल टच। या आवाज ना की किसी को डिस्टर्ब करना है तो पर्टिकुलर पार्ट है कि जिसपे आप टच कर सकते हो। इफ इट इज अपोजिट जेंडर, आपको एक पर्टिकुलर पार्ट को एकदम हल्के से ऐसे टच करना है कि उसको टच से फील हो जाए कि भाई ये बुला रहा है इसको। जैसे एग्जामिनेशन में सामने वाला है, आप आवाज तो नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो देख रहा है, तो फिर हल्के से क्या करना है, दिखे ना, ऐसे हाथ से टच कर देते हैं। फिर पहले ही प्लान होता है, हाँ, फिर वो बताता है 3 बार टच करता है, मतलब तीसरे सवाल का। फिर 1 बार 2 बार ऐसे ही हिलता है, यानी दूसरा। वो पहले से ही आप लोगों ने प्लान करके रखा है, राइट? सो दैट हैपेंस, टच से भी कम्युनिकेशन होता है। एंड देयर आर डिफरेंट टचेस। अभी तुम लोग 18 के कंप्लीट नहीं हो, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। फाइन, आगे आर्टिफैक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स। जिसके पास आईफोन होता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखो। आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या? चीजों से पता चल जाता है अबाउट द पर्सन, हिज इकोनॉमिकल स्टेटस एंड ऑल, राइट? इसलिए मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं ना, एकदम परफेक्ट लेकर आओ, तो लोगों को पता चलेगा कि ये बंदे का आउटलुक काफी परफेक्ट है, नॉट गिबरिश वन। यू नो गिबरिश, ऐसे ही नींद से उठ के चले आ, लाइक दैट। जूते बराबर इंटैक्ट है, शूज बराबर है, एसेसरीज जरूरत की ही है, राइट? आर्टिफैक्ट्स मतलब क्या? अगर हाथ में 3 सोने की अंगूठियां है तो पता चल जाएगा कि टीचर के पास बहुत माल। यस और नो? अगर कोई चोर मेरे घर आया तो उसको सभी जगह पे मोस्टली किताबें ही दिखेंगी, दोबारा आएगा यार ये इन किताबों को मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मेरे ये प्रोफेशन है, और फिर से मैं किताबों के घर में आ रहा हूँ, इधर नहीं जाने का। लेकिन किताबें देख के उसको पता चलेगा या तो ये इंग्लिश का स्टूडेंट है, या इंग्लिश का टीचर है, या फिर कोई एग्जाम ट्राई कर रहा है। आर्टिफैक्ट्स, यस, समझ में? अंबानी के घर चले जाओ, एंटीला देख के पता चल जाएगा कि दुनिया का सबसे अमीर घर है। आर्टिफैक्ट्स। कोई बंदा बुलेट से आ रहा है या लंबोर्गिनी से आ रहा है, कोई बोलेगा कि हाँ ये तो राम पाटिल के जैसा ही दिख रहा है भाई? कोई नहीं बोलेगा। लंबोर्गिनी मतलब करोड़ों की गाड़ी है। बात समझ में आपको? यस। रीजन आर्टिफैक्ट्स कम्युनिकेट। तो अभी तुम्हें क्या लेना देना आर्टिफैक्ट्स का? जब ऑफिस में जाओ ये काम करने के लिए, मेक श्योर कि आपकी जो एसेसरीज है वो रिक्वायर्ड हो। डोंट फ्लॉन्ट द ब्रांड्स, शर्ट की ब्रांड, परफ्यूम की ब्रांड, डोंट डू दैट, डोंट फ्लॉन्ट इट। जो है वो है, आप वहां पे काम करने जा रहे हो। डोंट शो योर आर्टिफैक्ट्स दैट हाउ रिच यू आर और हाउ पुअर यू आर। तो मैं नहाया नहीं, सब पानी भी नहीं है, होता है ऐसे, राइट? डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। कि घड़ी टूटी हुई है, कांच टूटा हुआ है, फिर भी पहने हैं, सर टाइम ही नहीं मिल रहा है। नो, गेट इट डन, गेट इट डन। आर्टिफैक्ट्स मैटर। इसकी काफी खराब हो जाती है कभी कभी, ये हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि टाइम ही नहीं होता। बट मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ। कभी कभी शूज को पॉलिश नहीं करते हम लोग, ये आर्टिफैक्ट्स में आता है। इट शोज कि यू आर निग्लेक्टिंग, यू आर निग्लेक्टिंग, तो आपको वो करना है। कभी कभी चश्मा, उसकी जो ये है फ्रेम है वो खराब हो जाती है, टेक केयर ऑफ इट, आर्टिफैक्ट्स में आता है। सो एज अ प्रोफेशनल, और घड़ी पहनते हो तो आवाज करने वाली नहीं, टी 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 12 बज गए घर चलो, इट्स नॉट लाइक दैट।
आपको जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, आपको अलार्म लगाना ही है तो मेक श्योर कि आप जरूरत के वक्त लगा सकें तो ही इस्तेमाल करना है। सो आर्टिफैक्ट्स भी आपको केयर करनी है। अगला सो दिस इज व्हाट एंड दिस इज हाउ यू हैव टू टेक केयर। अभी नेक्स्ट टाइम आपको स्किट करना है। स्किट कैसे करना है? एक बंदे का 30 सेकंड्स। कितना? 30 seconds. यहाँ पे आपको अगर कुछ प्रॉप्स लाने हैं, प्रॉप्स यू अंडरस्टैंड कि भाई बॉटल लग रही है, मोबाइल लग रहा है, किताब लग रही है, वो घर से लेकर आओ। कोई पर्टिकुलर ड्रेस आपको लग रहा है उस प्रॉप के लिए तो भी चलेगा, लेकिन बात नहीं करना है, नो शब्द। आपको एज अ प्रोफेशनल यहाँ पे आना है और एज अ प्रोफेशनल कुछ एक्ट करके दिखाना है और सामने वाले को पता चलना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। एक सिंपल शो करके दिखाता हूँ। एक्ट करायचं का फक्त मेसेज डिलिव्हर करायचा? एक्ट करायचं, एक मैसेज मैं दिखाता हूँ आपको। सी माय एक्टिंग। ऍक्टिव्हला डिलिव्हर होईल मेसेज. अगर मैं टीचर नहीं बनता तो शायद मैं एक्टर बनता। और यहाँ पे तुम लोग तो ऑडियंस हो ही थी और कंपलसरी ऑडियंस। यानी मैं कितनी भी बुरी एक्टिंग करूँ, आपको देखनी है और बोलना है वाह सर क्या एक्टिंग करी, मजा आ गया. एक्टिंग करी, राइट? अभी देखो, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट मैसेज इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। क्या किया मैंने? So you are so busy. डूइंग जॉब बिफोर डेडलाइन. और बीच में फोन कॉल। Burden. शायद ऐसे बंदे का आ गया कि आई डोंट लाइक। बीवी का हो सकता है, बॉस का हो सकता है। तो आपको एक ऑफिस का, मोस्टली ऑफिस का ही एक सीन लेकर आओ या फिर तुम्हारे क्लास का या इन जनरल लाइफ में लेकर आया तो भी चलेगा। व्हाट आई वांट इज कि ये चीजें आपने एंजॉय करनी चाहिए। जिस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू लिए, मॉक इंटरव्यू लेने की मैच्योरिटी आप में नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी 4 लोगों को कम से कम मजा आया होगा सवाल तो पूछने में, राइट? तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय एमएसबीटी, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय एमएसबीटी और टीएनआर। व्हाट दे एक्सपेक्ट कि आप लोग टाइपिंग करो, चिपकाओ, मैनुअल कंप्लीट हो गया, हम लोग एंजॉय करते हैं, वो परफेक्ट होती है। आई नो क्रिकेट खेलना आता है सबको? Yes. मजा आता है ना? Yes. Yes. बहुत बार लोग एडिटिंग करते हैं। अभी पार्थ को एडिटिंग की आदत है, उसको किसी ने बर्डन नहीं डाला है, ही एंजॉयज है। रिकॉर्ड करना है, एडिटिंग करना है एंड देन अपलोड करना है, राइट? मुझे भी पहले मजा नहीं आता था एडिटिंग में, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, आज भी मुझे एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं पता। आशीष को भी आता है. मैं सिर्फ ऐसे सामने रखता हूँ मोबाइल को और बस शुरू हो गया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ माय वीडियोस कि मैं उसके सामने बोलता रहता हूँ, क्योंकि वैसे भी घर में तो कोई सुनता नहीं, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। पॉइंट ये है कि आपको मजा आना चाहिए और तभी आपका लर्निंग होगा और ट्रेनिंग होगा और अच्छा शो दो। यहाँ पे अगर तुम लोगों ने ऐसे ही टाइम पास किया तो मजा नहीं आता। मैंने पहले ही बोला आपको, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे आपका टीचर और कुछ देगा, आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दोगे, मेरी भारत माता हमें कुछ नहीं आता है, टाटा बाय बाय, माय सैलरी गेट्स क्रेडिटेड एंड आई शुड बी बॉदर्ड अबाउट दैट। कर लो। Yes. थैंक यू सो मच।